अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वीडियो मैं एक रिस्पांस में बना रहा हूँ। जॉर्डन पीटरसन और मोहम्मद हिजाब के बीच में जो डिस्कशन हुआ उसके रिस्पांस में ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो सेकंड पार्ट है। अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, यहाँ पे मैं वो लिंक लगा दिया हूँ। तो चलिए देखते हैं ये पार्ट में लोगों की बात क्या हुई। Now, you described yourself as a traditionalist as opposed to a liberal Muslim. Yes. And we were talking a little bit about Mustafa Akyol. And so why for you is the traditionalism particularly important? And why should that carry more weight than, let's say, attempts to hypothetically liberalize Islam? What is it doing for you? Look, we have, and goes back to the pragmatism point and the postmodernism point. Islam gives you moral anchorage in and of itself. We believe Islam itself has an inbuilt flexibility, but objectively, from a correspondence theory perspective, it's an outside truth, which is hard, which is strong, and which can oppose and destroy postmodernism and nihilism. And that's what I think a lot of your followers want. So you think that a traditionalist grounding is it's a firmer foundation as far as you're concerned? When a liberal decides that they want to fuse Islamic ideas, I can understand that, and it's partly why I have some sympathy for the conservative perspective. Just one point. Okay, yes. So they're admitting that there's almost an admission that Islam is not complete and it's not perfect. We believe Islam is complete and is perfect in its guidance, and we believe we have evidence for that. And I understand the utility of firm foundations as a bulwark against chaos. It's not easy to protect yourself if you're a traditionalist against the temptation towards an authoritarian interpretation. And flawed as we all are, when we approach, let's say, sacred texts, we also have to remember that it's us who are reading them. And divine though they may be, that doesn't mean we're perfect in our receipt of their message. And so it's hard. What the danger on the more traditionalist side is the slide into authoritarian certainty, as opposed to the slide into chaos on the more liberal side. Well, so how do you personally defend yourself against that? Well, first of all, authoritarianism on pragmatism and pragmatism are not inconsistent, because an authoritarian leader can... I'm not saying I have the answer to that problem. Okay, so but you didn't answer my question, though. Look, it was a technical question. It's a technical question. Look, and maybe I'm wrong in the formulation, and you can tell me if you think I am. Yeah. What I see as a danger on the liberal side is the possibility of a descent into something like chaos. That's hopelessness and despair. Okay. But what I see on the more traditionalist side, let's say the conservative side, is a retreat into a kind of authoritarian certainty. And those are twin temptations that might be, what would you say, specific to given temperaments. And I was asking you personally, like you're a traditionalist believer. Yes. How do you protect yourself, your soul, against the temptations of overweening certainty? Yeah, no, I don't. In terms of certainty, I strive for it. In fact, we want it. We don't want to. The problem is not. How do you rectify error? Like, you're not perfect, obviously. No. Me personally, of course, I'm not perfect, but we believe we follow a perfect guidance. Right, but you follow it imperfectly. Yes, right? I am. And there's the rub. Right. So that's my point, is that given that you have to follow it imperfectly, given that you're imperfect, how do you defend yourself against inappropriate certainty? Because look, if you're imperfect, it means you think you're right about things you're not right about. That's the definition of imperfect. Compounded ignorance, right? There are things that in terms of my own personal, you're talking about my own personal faith. So I'm talking, you bet. Right, okay, I got you. There are certain things which I will believe in 100%. And there are certain things I will suspend judgment on. So the things which, for me, constitute the anchor, I believe the moment I take that anchor away, I plunge into chaos and anarchy and depression. And that's not something I'm willing to do for myself. So the certainty I have is that there's one God worthy of worship, that God's wisdom and guidance is the truth, that whatever God says is true, that the prophets are true, that heaven is true, that hell is true, all that stuff. The things I will suspend judgment on is how to deal with situations. Because that, I do believe, by the way, in a kind of Sharia consequentialism. And I do believe that within the Islamic framework is something called usul al-fiqh, which is basically the principles of jurisprudence, that rules are not always going to work in all cases.
We do believe that, by the way. So for example, I'm not allowed to drink alcohol, but in certain cases, if it's the last thing that one can do if they're not going to die, if they're going to die if they don't do it, then you can do it. And this is just one like extreme example. We're not allowed alcohol in Islam, obviously. This is one of the injunctions. But there are things we do believe in a consequential and inbuilt flexibility. With that, we have to communicate, we have to discuss, we have to speak to Muslims and non-Muslims alike. Okay. So I'm still not getting at what I want to hear from you specifically. Yes. Go on. You know that, well, all of us struggle with the desire to have what we believe be right at all costs, right? Because it is satisfying and it's difficult to be wrong because it means you have to improve. You have to look at your errors. I'm asking you personally, like when you're dealing with your wife, when you're dealing with your kids, how do you know how is it that you can protect yourself against being overweening? Now, this is a good question. You're going to get me in trouble with this kind of thing right now, Jordan Peterson. तो यहाँ पे देखिए जॉर्डन पीटरसन एक बहुत अच्छा सवाल करे मोहम्मद हिजाब से। ये पूछ रहे हैं कि ट्रेडिशनलिस्ट क्यों ज़्यादा वेट कैरी करना चाहिए लिबरल से कंपेयर करें तो, और क्यों ये लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशनलिस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोल के पूछ रहे हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत परफेक्ट क्वेश्चन था इनका। और फिर इसके बाद उन्होंने आगे बताए कि क्योंकि ट्रेडिशनलिस्ट अथॉरिटेरियन सर्टेनिटी में आ जाते हैं, आके एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देते हैं, और लिबरल्स जो एक केओस में आ जाते हैं और वो भी अनस्टेबिलिटी रहती है। तो फिर ये दोनों में आप क्यों ट्रेडिशनलिस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे बोल के मोहम्मद हिजाब से यह क्वेश्चन करे ना। तो ये क्वेश्चन का मेन एम जो जॉर्डन पीटरसन बताया, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत अच्छे एम से बताया ना। क्योंकि जब ट्रेडिशनलिस्ट अपना इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कुरान का, तो वो लोग कुछ और निकालते, और जब लिबरल्स एक इंटरप्रिटेशन निकालते कुरान का, वो लोग कुछ और निकालते। तो किसका इंटरप्रिटेशन ज़्यादा सही है और क्यों आप ट्रेडिशनलिस्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं यहाँ पे बोल के पूछे जॉर्डन पीटरसन। तो यहाँ पे देखिए जॉर्डन पीटरसन एक अच्छा स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट क्या है सुनिए। ट्रेडिशनलिस्ट टेंड्स टुवर्ड्स अथॉरिटेरियन इंटरप्रिटेशन एंड फ्लॉड एज वी ऑल आर when we approach a sacred text, it's us who are reading them, and divine though they may be, we are not perfect in receipt of their message. तो यहाँ पे बोल रहे हैं जॉर्डन पीटरसन कि अगर एक किताब या किताबें जो भी वो मानते हैं खुदा की तरफ से भी है, तो वो किताब 100% परफेक्ट है, ठीक है, मगर क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे से कहीं ना कहीं गलती होती, कहीं ना कहीं कोताही होती, हमारे उसमें कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स रहते हैं, तो फिर जब हम वो किताब को अप्रोच कर रहे हैं और उससे हम इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं, उससे हम तफसीर निकाल रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं वो किताब को जो अल्लाह की तरफ से है, तो कहीं ना कहीं हमारे से गलती होती ना इंटरप्रिटेशन में, हमारे तफसीर में कहीं ना कहीं गलती रहती, ड्रॉबैक रहता बोल के बता रहे। वो क्यों रहता? क्योंकि हमारे उसमें गलती है, हम उसके मैसेज को सही से नहीं ले सक रहे। तो फिर आप कैसा बोल रहे हैं कि एक ट्रेडिशनलिस्ट का जो इंटरप्रिटेशन है, जो तफसीर है खुदा की किताब का, वो परफेक्ट है बोले कैसा बोल सक रहे हैं आप? यह सवाल था जॉर्डन पीटरसन का। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम जॉर्डन पीटरसन बताया, इसके बारे में बोल दिया कि भाई मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है बोल के, और बहुत ही अपनी तरफ से स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर एक बात बताया उन्होंने। पहले हम चलिए समझते हैं कि ट्रेडिशनलिस्ट क्या है। ट्रेडिशनलिस्ट वो लोग होते हैं जो ट्रेडिशंस को, जो अपने बाप दादाओं से आ रहे हुए रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। ये लोग ज़्यादातर चेंज को पसंद नहीं करते। हमारे बाप दादा ऐसा करें, हम भी वैसे ही करेंगे, वो लोग सही थे, हम भी वैसे ही करेंगे, हम सही रहते बोल के सोचते हैं। ये लोग कोई चेंज को एक्सेप्ट ज़्यादा नहीं करते। इसके क्वाइट अपोजिट लिबरल्स रहते हैं। लिबरल्स क्या है बोल तो आज़ाद ख्याल के रहते हैं। वो लोग कोई चीज़ को जो पहले हो चुकी, जो अपने बाप दादा करके गए, वो सही रहना ज़रूरी नहीं समझते। तो ये लोग लेफ्ट विंग होते हैं लिबरल्स, और ट्रेडिशनलिस्ट ज़्यादातर राइट विंग होते हैं। तो ये दोनों में भी एक्सट्रीम्स है। ट्रेडिशनलिस्ट भी अपनी जगह एक्सट्रीम है राइट में, और लिबरल्स भी अपनी जगह एक्सट्रीम है लेफ्ट में। ये दोनों में भी अनस्टेबिलिटी आती है, और जॉर्डन पीटरसन ये बात क्लियरली बताए भी। उन्होंने बताया कि भाई ट्रेडिशनलिस्ट ज़्यादातर अथॉरिटेरियन सर्टेनिटी में आके एंड अप होते हैं, और वहाँ पे अनस्टेबिलिटी आती है उनमें बोल के बताए। और फिर बोले कि लिबरल्स में ज़्यादातर केओस आता, वो लोग भी एक अनस्टेबल कंडीशन में ख़त्म करते बोल के बताए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इसमें मैं और एक क्वेश्चन भी ऐड करना चाहूँगा। जो हमारे मौलवी लोग कहते हैं, जो हमारे उलमा बोलते हैं कि भाई हम लोग, क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट्स है मदरसों के, क्योंकि हमारे पास स्कॉलरशिप्स है बड़े बड़े, तो हम लोग जो इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, जो हम समझेंगे कुरान को, वही सही तरीका है बोल के हमारे मौलवी, हमारे उलमा हजरात बताते हैं।
तो ये फिर क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशनलिस्ट तरीका बताते हैं कि हमारे बाप दादा हमारे बड़े हमारे असलाफ बताए बोल के रास्ता, तो फिर क्या वो गलत हो सकती क्या? फिर क्या उनका इंटरप्रिटेशन सही है क्या? ये भी एक सवाल इसमें ऐड कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, पहली बात ये है कि ट्रेडिशनलिस्ट वो आदमी को बोलते हैं जो ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, जो अपने बाप दादाओं से जो रीति रिवाज चलते हुए आ रहा, वो रीति रिवाज को फॉलो करने वाले को ट्रेडिशनलिस्ट बोलते हैं। इससे क्वाइट अपोजिट लिबरल्स रहते हैं। लिबरल्स ज़्यादातर आज़ाद ख्याल के लोग रहते हैं, वो लोग कोई रीति रिवाज को फॉलो नहीं करते बोलते हैं। तो ये दोनों भी क्या है, एक्सट्रीम्स हैं, और ये दो एक्सट्रीम्स भी कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। ट्रेडिशनलिस्ट क्या है, एक अथॉरिटेरियन सर्टेनिटी में अनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। वही देखिए लिबरल्स उससे क्वाइट अपोजिट जो रहते हैं, वो लोग एक केओस में आते हैं, एक होपलेसनेस स्टेट में आते हैं। तो ये दोनों भी अनस्टेबल चीज़ें हैं, और जॉर्डन पीटरसन ये बात भी बताए कि दोनों भी अनस्टेबल है बोल के बताए, और बहुत अच्छी चीज़ बताए उन्होंने। तो बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि क्योंकि दो भी एक्सट्रीम्स है और दो में भी अनस्टेबिलिटी आ रही, तो हमारा भी ये बात समझना चाहिए कि जब एक्सट्रीम्स पे चले जाता है इंसान, तो वो स्टेबिलिटी नहीं है, और वो दोनों भी सही नहीं है, बल्कि कोई ज़्यादा वेट या कोई कम वेट कैरी नहीं, फिर तो वो दोनों को भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, वो दो विंग्स को भी कोई ज़्यादातर मोर वेट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जवाब, ये क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करे मोहम्मद हिजाब, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने आके अटक गए। उसमें क्या हुआ, उन्होंने पहली बात तो ये बोले कि मैं कुछ चीज़ों के बारे में सर्टेन रहता हूँ और कुछ चीज़ों के बारे में अनसर्टेन रहता हूँ बोल के बोले। जब क्योंकि उन्होंने पूछे कि भाई अथॉरिटेरियन सर्टेनिटी आती ना आपके पास, बोलते हैं उन्होंने थोड़ा ट्रेडिशनलिस्ट की तरफ से हटना शुरू करके क्या बोले कि कुछ चीज़ों के बारे में सर्टेन हो, कुछ चीज़ों के बारे में अनसर्टेन हूँ बोले। और सर्टेन हूँ से चीज़ें क्या बोले, देखिए वो कि खुदा एक है, इस पे मैं सर्टेन हूँ बोले, और खुदा बताए सो रास्ता सही है, इस पे भी सर्टेन है बोले, और खुदा जो बोलते वो सच है बोले, और नबी रसूल आए ये भी सही है, जन्नत जहन्नुम है ये भी मानते हैं, 100% सर्टेन है बोले। और बाकी के चीज़ें जो है, जैसे सिचुएशंस को डील करने की जो चीज़ें हैं, उसको उन्होंने अनसर्टेन है, उस पर उन्होंने अपना जजमेंट कोई नहीं रखते, वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया उन्होंने बोल के बोले। यहाँ पे जॉर्डन पीटरसन इनके ये जवाब से सेटिस्फाई नहीं हो कि और थोड़ा इनको प्रेसिंग एक अलग एंगल से क्वेश्चन पूछे नो, तो फिर उन्होंने टॉपिक बदल लिए वहाँ पे, अपनी पर्सनल लाइफ में बताई कि भाई क्योंकि मैं अपनी बीवी से भी ऐसा चीज़ों में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, बाद में मैं समझा करा बोल के बता दिए। मगर उन्होंने ये नहीं बता सके कि ट्रेडिशनलिस्ट ज़्यादा वेट कैरी क्यों करना चाहिए बोल के। तो मैं तो यहाँ पहली बात आपको जैसा बता दिया है कि ट्रेडिशनलिस्ट और ना ही लिबरल्स कोई भी ज़्यादा वेट कैरी नहीं करना चाहिए, दो भी एक्सट्रीम से, दो भी अनस्टेबिलिटी क्रिएट करते बोल के बोल दिया। अब देखेंगे कि कुरान क्या बोलता है इस बारे में। ये इतना अच्छा सवाल है, और फिर ये सवाल के बेसिस पे हमारे मालूम होता है कि कुरान किसको बोलता है कि भाई मेरे को समझ सकते हो बोल के। क्योंकि अगर ट्रेडिशनलिस्ट जैसा हमारे उलमा हजरात है, अगर वो लोग समझने बैठेंगे कुरान को, तो वो एक अथॉरिटेरियन सर्टेनिटी में आ रहे, वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हम जो बोल रहे हैं सही है बल्कि, और लिबरल्स एकदम होपलेसनेस क्रिएट करके वो लोग तो केओस में आ रहे, तो वो भी गलत है। फिर अल्लाह ताला किसको सर्टिफिकेट दे रहा कुरान का एक तफसीर करने, इंटरप्रिटेशन करने? वो देखिए आयत सूरह बकरा की 177 है। इससे पहले के वीडियोस में भी मैं ये आयत डिस्कस करा, अभी भी ये आयत डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला क्या बोल रहा, राइटियसनेस इज नॉट टर्निंग योर फेसेस टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट, के अच्छा ये नहीं है कि आप अपना मुंह मशरिक या मगरिब की तरफ करो। मशरिक और मगरिब क्या है, लेफ्ट और राइट के दो एक्सट्रीम्स हैं। तो यहाँ पे ये जो ट्रेडिशनलिस्ट और लिबरल्स है, ये राइट और लेफ्ट के एक्सट्रीम्स है। तो अल्लाह ताला बोल रहा कि ये दो एक्सट्रीम्स में भी, ना ईस्ट ना वेस्ट के दो एक्सट्रीम्स पे भी हकीकत में नेकी नहीं है बोल रहा, अच्छा ही नहीं है बोल रहा। नेकी अच्छा ही क्या है, पहले अपन को समझना चाहिए कि नेकी क्या है, इंसान को स्टेबिलिटी लेके आती, इंसान की ज़िंदगी में बैलेंस लेके आती। तो अगर जहाँ पे भी हम काम करेंगे जो नेकी का नहीं है, तो वो इंसान की ज़िंदगी में केओस, अनस्टेबिलिटी लेके आता। तो अल्लाह ताला बोल रहा है कि दो भी एक्सट्रीम्स सही नहीं है बोल रहा। अल्लाह ताला बता रहा है कि ना लेफ्ट ना राइट, दो एक्सट्रीम्स भी सही नहीं है बोल रहा। तो फिर सच, हाँ, नेकी क्या है बता रहा, देखिए अल्लाह ताला, राइटियसनेस इज इन वन हु बिलीव्स इन अल्लाह, अल्लाह पे यकीन रखने में। क्योंकि जब आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं, आपको समझ में आता कि भाई कोई धोखा दिया आपको, कोई आपका माल नाहक खा लिया, तो आप समझते कि ये अल्लाह इसका अजर इसको देगा और इसका मेरे को भी एक रिवॉर्ड देगा बोल के आप समझते। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आती, ज़मीन में फिर फसाद नहीं होता, एक दूसरे को मार लेना शुरू नहीं करते। और फिर अल्लाह ताला बोल रहा द लास्ट डे, आखिरत के दिन पे
आखिरत के दिन पे इसीलिए क्योंकि ये दुनिया में अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो आप कल के दिन जब अल्लाह के पास सामने खड़े होंगे आखिरी दिन में, तो अल्लाह ताला आपके साथ इंसाफ करेगा। द लास्ट डे, द एंजल्स, द बुक एंड द प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बोल रहा है कि आखिरी दिन पे, क़यामत पे जैसा हम बोले, और फरिश्तों पे, अल्लाह की किताब पे और नबियों पे ईमान लाने वाले। और फिर आगे तरह अल्लाह ताला क्या बोल रहा है देखिए, एंड गिव्स वेल्थ इंस्पाइट ऑफ लव फॉर इट। और बोल रहा है कि भाई सामने वाले को पैसा देते, हालांकि पैसों से मोहब्बत रहती है मगर फिर भी सामने वाले को देते, बोल रहा अल्लाह ताला। इससे क्या होता है, हमारे को जब सामने गरीब आते, जब मुसाफिर आते, जब मोहताज आते हैं, उन लोगों को जब हम पैसा देते, ज़मीन में स्टेबिलिटी क्रिएट होती। ज़मीन में उनको ज़रूरत थी, हम दिए तो कहीं क्राइम कमिट नहीं होता, स्टेबिलिटी आती। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बोल रहा देखिए स्टेबिलिटी ये चीज़ों में है बोल के बता रहा, नेकी है बोल रहा अल्लाह ताला इसको। और आगे अल्लाह ताला क्या बोल रहा, रिलेटिव्स को देते, टू रिलेटिव्स, ऑर्फेंस, द नीडी, द ट्रैवलर। तो यहाँ पे ये चीज़ें बता रहा देखिए किन किन को पैसा देना है हमारा। एक तो है रिलेटिव्स, कई ऐसे देखा मैं घराने जिसमें रिश्तेदार गरीब रहते, ज़रूरतमंद रहते, वो लोग क्या करते, पैसा नहीं देते अपने रिश्तेदारों को, हालांकि ज़रूरतमंद रहते उनको फिर भी नहीं देते। कई ऐसे लोगों को देखा जो यतीम रहते बेचारे, जिसके माँ बाप नहीं रहते, वो लोग को ना पालते ना देखते उनकी तरफ, ना उनको टेक केयर करते हैं। इससे क्या होता है, वो बच्चा बड़ा होने के बाद कोई गलत कामों में, कोई एक लोनली ज़िंदगी, कोई एक्सट्रीम्स पे चले आता बेचारा, उसकी एक अलग अनस्टेबल लाइफ गुजारता सोसाइटी में। इससे सोसाइटी पूरी अनस्टेबल है थी। तो अल्लाह ताला बोला रिलेटिव्स में दो, यतीमों को दो, ज़रूरतमंद को दो। बोला कई ऐसे रहते ज़रूरतमंद जिनको पैसा होना रहता, जो बोलते नहीं आपको, आपके दोस्तों में, आपके महल्ले में, ये लोगों में भी कई ऐसे लोग रहते, तो उनको भी ढूंढना, उनको भी देना बोल रहा अल्लाह ताला। और आगे अल्लाह ताला बोल रहा द ट्रैवलर, जो लोग मुसाफिर रहते, सफ़र में रहते, उन लोगों को कई ऐसे लोग रहते जो सफ़र में जाते रहते, उन लोगों की पॉकेट मार लेते, उन लोगों का माल नाहक माल लेके खाते, उन लोगों को गलत रास्ता बताते, उन लोगों के काम को जो है रोक देते हैं, ये सब करते। अल्लाह ताला बोल रहा उनकी भी मदद करना बोल रहा। दोज हु आस्क फॉर हेल्प, अल्लाह ताला बोल रहा जो भी मदद मांगे आपको उनको भी हेल्प करने वाले बोल रहा। एंड फ्रीइंग द स्लेव्स, गुलामों को आज़ाद करना। गुलाम सिर्फ इंसान का गुलाम नहीं, गुलाम पैसों का भी गुलाम रहता, सोसाइटी का गुलाम रहता, ये सबको आज़ाद करना बोल रहा अल्लाह ताला। आज़ाद जब इंसान रहता उन्हें फिर नॉरिश हो सकता, उन्हें फिर डेवलपमेंट में आ सकता। तो अल्लाह ताला वही बता रहा है यहाँ पे, इस्टेब्लिश प्रेयर्स एंड गिव ज़का, नमाज पढ़ना बोल रहा अल्लाह ताला, सलात क़याम करने वाले और ज़कात देने वाले बोल रहा। तो ज़कात से भी यही है कि जब ज़कात हम देते हैं हमारी सेविंग्स में से, हमारे पैसों में से, जब हम कंपलसरी चैरिटी निकाल के देते तो सोसाइटी में पैसा रहता, सोसाइटी में पैसा फ्लो होता, गरीबों को, मोहताजों को मिलता पैसा। तो स्टेबिलिटी है बोला देखो अल्लाह ताला। तो ये जो क्वालिटीज़ हम डिस्कस करें, जो गरीबों को, मोहताजों को, रिश्तेदारों में गरीब जो है, मुसाफिरों को, इन सबको पैसा देने वाला, जो अल्लाह के ऊपर क़यामत के दिन पे अल्लाह की किताब पे, नबियों पे ईमान लाता, ऐसा आदमी स्टेबल है पहले बोल के बता रहा। स्टेबिलिटी तो अब समझ में आ गई, स्टेबिलिटी ना ईस्ट में है ना वेस्ट में है, ना ट्रेडिशनलिस्ट में है ना लिबरल्स में है। ये एक जवाब समझ में आ गया ना आप लोगों को, जॉर्डन पीटरसन जो सवाल करें। अब इसके बाद जॉर्डन पीटरसन बोल रहे हैं कि ये दो भी जब अनस्टेबल है तो इंटरप्रिटेशन किसका सही रहता, पूछो ना किताब का। अब इसके बाद देखिए एक 2-3 और क्वालिटीज़ है जो ऐड करने पे हमको ये किताब समझ में आती बोल के बता रहा अल्लाह ताला। अब वो 2-3 और क्वालिटीज़ क्या है इसमें ऐड करने की हमको? पहली बात अल्लाह ताला बोल रहा है कि फुलफिल द प्रॉमिस व्हेन दे प्रॉमिस, जब वादा करते तो वादा पूरा करते बोल रहा अल्लाह ताला। और दूसरी बात क्या बोल रहा, एंड आर पेशेंट इन पॉवर्टी, हार्डशिप एंड ड्यूरिंग बैटल। तो दूसरी क्वालिटी अल्लाह ताला बता दिया कि भाई हार्डशिप यानी परेशानी के वक्त, गुर्बत के वक्त, गरीब जब पैसा नहीं रहता, जब परेशानी चलते पॉवर्टी के टाइम पे, वो टाइम पे, और ड्यूरिंग बैटल अगर किसी से लड़ाई हुई, किसी से जंग में है, तो वैसे टाइम पे सब्र करके उसमें से निकलने वाले। तो ये 2 और क्वालिटीज़ अल्लाह ताला बता के क्या बोल रहा, यही मुत्तकीन है और यही जो है अच्छे लोग हैं बोल के बता रहा अल्लाह ताला। तो अब यहाँ पे फिर हम सेकंड, अगर सूरह बकरा की सेकंड आयत को देखेंगे तो अल्लाह ताला बोल रहा ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन, बोल रहा कि ये किताब मुत्तकियों के वास्ते है, मुत्तकियों के वास्ते किताब हिदायत है बोल रहा। तो हिदायत इंटरप्रिटेशन जो है ये किताब का अल्लाह ताला बोल रहा मुत्तकीन के वास्ते। और मुत्तकीन के क्वालिटीज़ यहाँ पे हम आपको समझ में आ गया कि नेक लोगों में 2-3 क्वालिटीज़ और जो एक्स्ट्रा बताया अल्लाह ताला, वादा करे सो पूरा करना, और गुर्बत में, परेशानी में और जंग के टाइम पे सब्र करने वाले, ये 2 एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ रखने वाला मुत्तकीन है। तो मुत्तकियों के वास्ते किताब में हिदायत है, इंटरप्रिटेशन उनका सही रहता है वो अल्लाह ताला।
तो चाहे कोई मौलवी, चाहे उनके पास कौन सा भी सर्टिफिकेट रहने दीजिए, क्या भी रहने दीजिए, उनकी बात सही है नहीं बोल रहा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला बोल रहा कि ये क्वालिटीज़ रखने वाले की बात सही है बोल रहा। तो ये क्वालिटीज़ अगर कौन से भी इंसान में हो, अगर वो इंसान ये किताब पढ़ेगा तो उसके लिए हिदायत है, उसके लिए इसका इंटरप्रिटेशन सही रहेगा बोल रहा। तो हर इंसान को अपनी जगह स्ट्राइव करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए ये क्वालिटीज़ उसके उसमें लाने की। तो मौलवी हजरात जो बड़े बड़े सर्टिफिकेशंस, बड़े स्कॉलरशिप्स कैरी करने वाले हैं, जो अथॉरिटी बताते हैं कि हम हमारे असलाफ समझे वैसा हम समझते बोल के, ये बातें अल्लाह ताला कहीं भी नहीं बता रहा कि इससे आप किताब समझ सकते हो बोल के। तो उनके भी बातें कहीं ना कहीं गलत है। वो लोग भी ये क्वालिटीज़ रखते तो ही वो इंटरप्रेट करे तो सही रहता, वरना उनका इंटरप्रिटेशन कोई वैलिड नहीं है, कोई क्रेडिबल नहीं है। क्योंकि उनके सर्टिफिकेशंस की कोई बात यहाँ पे अल्लाह ताला नहीं बताया। सर्टिफिकेशन अल्लाह ताला दिया ऐसे आदमी को जो ये नेक काम करके स्टेबिलिटी लाता ज़मीन में। तो वैसे सर्टिफिकेशन कैरी करने वाले आदमी को अल्लाह ताला यहाँ पे बोल रहा कि ये आदमी मेरी किताब को इंटरप्रेट कर सकता बोल के। और फिर डॉक्टर पीटरसन के सामने मोहम्मद हिजाब ये बात रख नहीं सके। मेरे को इसीलिए दिखा क्यों नहीं रख सके बोल, तो एक तो क्या है, उन्होंने अपने आप को ट्रेडिशनलिस्ट बोल के गए कि भाई मैं ट्रेडिशनलिस्ट हूँ, मैं एक अलग राइट विंग से आ रहा हूँ, आप अब तक लेफ्ट विंग से लोगों से बात करें, लिबरल से बात करें, एंटी मुस्लिम से बात करें, एक बार मेरे से बात करके देखिए बोल के मोहम्मद हिजाब बोले। अब वही बेसिस पे उन्होंने फिर ये आयत रख दिया, तो ट्रेडिशनलिस्ट ग्राउंड भी गलत है बोल के समझ में आ जाता। तो वो एक पॉइंट दिखा मेरे को। और दूसरा पॉइंट ये है कि डॉक्टर पीटरसन का प्लेटफॉर्म बड़ा है, उनके ऑडियंस ज़्यादा है, वहाँ पे मेरी एक पब्लिसिटी होती है, मैं आपसे अच्छी बात कर लेता हूँ थोड़ी, और फिर आप भी आइए, आके हमारे पास देखिए, हमारे पास कंजर्वेटिव्स है जो आपको पसंद करते हैं, आप भी आके यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं हमारे साथ, हमारे लोग आपको सुनते हैं, आपको पसंद करते हो बोल के बताए। कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दिखी इसमें मेरे को। तो ये दो बड़े पॉइंट्स दिखे जिसकी वजह से मोहम्मद हिजाब अपनी बात नहीं रख सके जैसा दिखा मेरे को। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा दिखा, आप लोगों को डॉक्टर पीटरसन का वीडियो कैसा दिखा, मोहम्मद हिजाब की बात कैसी दिखी वो भी बताइए। टिल देन टेक केयर, अस्सलामु अलैकुम।